Welcome everyone. Let's start with our next video. This will be the last video for the chapter Sexual Reproduction in Angiospermic Plants, and we will be completing the topic post fertilization event and some of the important terminologies related to the sexual reproduction in the plants. So, we have been observing since last many days this chapter in the form of different lecture series and the topics. I have provided you the MCQ test also on the whole syllabus. Similarly, after completion of this video, I will provide you some exercise from your 12 biology state board book as well as from NCERT book, and this exercise you have to perform and submit it to the WhatsApp group. Okay, so we have seen the post fertilization events includes four important tasks. The first task is the formation of endosperm, second is the formation of embryo, third is the formation of seed from the ovule, and the fourth formation of fruit from the ovary. All of these things happen simultaneously, and thus the fruit and the seeds going to be developed. We have also observed the embryo development in case of monocot as well as in case of dicot. We have also seen the uh, dicot embryo and monocot embryo and their difference properly. We have also observed the structure of the seed. Okay, we have also seen the significance, viability, importance of the seeds as well as significance of the fruit formation. So today we will be going to complete the next task, and the task is one of the important terminology, that is पार्थेनोकार्पी. अभी क्या कि काफ़ी सारे बच्चे पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस इन दो टर्मिनोलॉजीज़ में कंफ्यूज होते हैं. 2 साल पहले नीट के लिए रिलेटेड टू दिस पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस एक क्वेश्चन अपीयर हुआ था विच वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन, but students got stuck in both of the terms, parthenocarpy and parthenogenesis. So see, parthenogenesis, when we say genesis, so genesis is nothing but the phenomenon that has to be happen. Okay, so parthenogenesis is the phenomenon where there will be a formation of fruit without formation of, okay, sexual reproduction, so without formation of seed. So there will not be a seed formed, but the fruit will be formed, and the fruit is called as the seedless fruit. So the phenomenon is parthenogenesis, and the fruit which is formed by this parthenogenesis process, that fruit is called as parthenocarpic fruit. Okay, and the terminology is parthenocarpy, which is nothing but the virgin fruit, we say. So virgin fruit is the natural or artificially induced production of fruit without formation of ovule, without fertilization of ovule, and the fruit is therefore seedless. So there will not be any fertilization. इसका मतलब है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होना है, जाइगोट नहीं बनेगा. ओके, ओव्यूल में सीड नहीं बनेगी, ओव्यूल की सीड नहीं बनेगी, बट फ्रूट जरूर बनेगा. सो फ्रूट विल डेवलप, बट इफ यू कट दैट फ्रूट you will not see any seed in it because it is formed without fertilization process, and that is very important part. Okay, so this is parthenocarpy. The term was first coined by Knoll in 1902, and it is the condition in which fruit is developed without the process of fertilization. This parthenocarpy can be seen in many of the plants such as pineapple, banana, papaya, etc., and it is of natural process, whereas in these plants it seems that the placental tissue in the unfertilized ovary produces auxin called IAA, indole 3 acetic acid, which is responsible for enlargement of ovary in the fruit. So it is the process of providing a phytohormone called auxin, that is indole acetic acid, to the fruit so that the fruit size will become bigger. The fruit resembles normally, okay, produced fruit, but it is seedless. तो इसका मतलब ये है कि in case of pineapple, papaya and banana, you will observe the fruit will be properly developed and it will not contain any kind of seed, and this seed less formation of fruit is developed particularly due to without fertilization event. बट इसमें और एक चीज़ आती है कि इसमें कई बार आर्टिफिशियली जो अनफर्टिलाइज्ड ओवरी होती है उस ओवरी में
IAA रिलीज किया जाता है. सो द प्लासेंटल टिश्यू इन अनफर्टिलाइज्ड ओवरी प्रोड्यूसेस द ऑक्सीन कॉल्ड एज IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, and this IAA is responsible for enlargement of the ovary in the fruit. Okay, so हमें अगर फ्रूट बड़ा करना है तो IAA का ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है, which is nothing but an auxin. Okay, so this is about the parthenocarpy fruit. There is one more terminology which might comes that is available in 12 biology NCERT book, and the questions arises from this terminology, which is apomixis. So apomixis is nothing but away from the mixing. So it is away from the mixing. It means away from mixing, it means it is the process of asexual reproduction which mimics the sexual reproduction. मतलब है तो asexual reproduction पर sexual reproduction की मिमिक्री करता है. लगता है कि ये sexual reproduction है पर actually में वो asexual होता है. That is called as apomixis, which is first developed by Hans Winkler. Okay, he used this Hans Winkler used this terminology apomixis, which is the replacement of normal sexual reproduction by the process of asexual reproduction, that to be without fertilization. मतलब यहाँ भी बिना फर्टिलाइजेशन का डेवलपमेंट होना है. मतलब है तो asexual reproduction पर मिमिक्री आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी मिलेगी. So apomictically produced offsprings are genetically identical to their parent plant. So they are all genetically identical, that's why it is a way of asexual reproduction. And in flowering plants, the term apomixis is commonly used in a restricted sense to mean agamospermy, that is clonal reproduction through the seeds. So this is again one of the important term that can be observed, called as agamospermy, whereas the flowering plants is commonly used in a restricted sense to means the agamospermy, that is clonal reproduction through the seeds. There is also one male apomixis that is also called as parental apomixis, involves the replacement of the genetic material of the egg cell by that from the pollen grain. So there are these two terminologies also which comes with the apomixis. So apomixis is nothing but a way of asexual reproduction which mimics the sexual reproduction. In apomixis, there are different types of apomixis can be observed and seen in case of variety of angiospermic plants. When a gametophyte organ or cell produces embryo-like structure without fertilization, it is called as apogamy. So there will be a gametophyte organ or cell प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर विदाउट फर्टिलाइजेशन. मतलब एम्ब्रियो मिलेगा और वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बना हुआ मिलेगा, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और एम्ब्रियो बनेगा, तो वो टर्म है एपोगैमी. सिमिलरली व्हेन डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल, मतलब डिप्लॉयड सेल विच इज अ स्पोरोफाइट इन नेचर, वो सेल प्रोड्यूसेस अ डिप्लॉयड गैमेटोफाइट विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, दैट इज कॉल्ड एज एपोस्पोरी. एग्जाम्पल ऑरेंज एंड मैंगो. तो हमें एपोगैमी भी मिल सकती है, एपोस्पोरी भी मिल सकती है. एपोगैमी में मेल गैमेटोफाइट या फिर फीमेल गैमेटोफाइट बिना फर्टिलाइजेशन के जो है एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और एपोस्पोरी में डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेल जो है वो विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस ओके एम्ब्रियो बनाएगा, विच इज कॉल्ड एज एपोस्पोरी. ओके, सो दीज टू टर्मिनोलॉजीज आर ऑल्सो सीन. एपोमिक्सिस इज ऑफ थ्री टाइप्स: रिकरेंट एपोमिक्सिस, non-recurrent apomixis and adventive embryony. So recurrent apomixis is the type where the embryo sac generally rise either from archaeosporial cell or from some other part of the nucellus. So this is what we are talking about the ovule. Ovule के अंदर जो न्यूसेलस वाला पार्ट होता है या फिर आर्किस्पोरियल सेल्स जो होती है, विच आर नथिंग बट द प्रिमिटिव मेगास्पोर सेल्स, उन आर्किस्पोरियल सेल्स से या फिर न्यूसेलस सेल से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो सैक बनेगी, एंड दैट इज रिकरेंट एपोमिक्सिस. इसका मतलब ना वहाँ एग का कुछ काम आया है, ना कि सिनर्जिट्स का काम आया है, ना कि एंटीपोडल्स का काम आया है. द सेल्स दैट आर ट्रूली ऑफ न्यूसेलस, और न्यूसेलस के सेल्स ने एम्ब्रियो बनाया. तो ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हुआ, इसे हम कहेंगे रिकरेंट.
रिकरेंट में दो अलग अलग टाइप हमें देखने को मिलेंगे. वन इज डिप्लोस्पोरी, ओके, कंडीशन, एंड अदर वन इज एपोस्पोरी कंडीशन. डिप्लोस्पोरी कंडीशन में unreduced embryo sac is derived from diploid megaspore mother cell. मतलब डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बनेगी. एग्जाम्पल टेरेक्स कैकम. और एपोस्पोरी में न्यूसेलर सेल गिव राइज टू एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक. मतलब दो प्रकार से होगा. एक तो मेगास्पोर मदर सेल विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस इट विल फॉर्म द एम्ब्रियो विच इज कॉल्ड एज डिप्लोस्पोरी, या फिर न्यूसेलस का टिश्यू विच अंडरगोज डिवीजन टू फॉर्म द एम्ब्रियो विच इज एपोस्पोरी. तो रिकरेंट एपोमिक्सिस इस अलग अलग वैरायटी ऑफ टाइप्स में फॉर्म हो सकता है. सो दिस इज वन टाइप. दूसरा टाइप जो है वो नॉन रिकरेंट है. नॉन रिकरेंट में अलग होता है. सो क्या होता है? सो इन दिस टाइप मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज नॉर्मल मियोटिक डिवीजन. उसकी वजह से क्या होगा? हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक इज डेवलप्ड. सो दिस इज, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है कि भाई मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया, आपको 4 सेल मिली, 4 सेल में से 3 सेल डिजेनरेट हो गई, एक बड़ी हो गई, और वो बड़ी वाली को हम कहेंगे हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक. नाउ हियर द एम्ब्रियो अराइजेस ईदर फ्रॉम द एग बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, जो कि हमने अभी देखा, और फ्रॉम सम अदर हैप्लॉइड सेल्स ऑफ गैमेटोफाइट थ्रू एपोगैमी. ओके, सो एक तो पार्थेनोजेनेसिस से एम्ब्रियो बनेगा या फिर एपोगैमी से एम्ब्रियो बनेगा. एंड दस द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड आर जनरली स्टेराइल एंड डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. एग्जाम्पल निकोशियाना. मतलब ये सेक्सुअल प्लांट्स बनते हैं, स्टेराइल प्लांट बनते हैं, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर नहीं सकते, बट वो ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं. एग्जाम्पल इज निकोशियाना टोबैकम. ओके, सो निकोशियाना इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज द एडवांटिव एम्ब्रियोनी. अब एडवांटिव एम्ब्रियोनी में जो है एक टाइप ऐसा आएगा कि नॉर्मल वाला जाइगोट तो बनेगा, पर नॉर्मल वाले जाइगोट के साथ बाकी न्यूसेलस के जो सेल्स हैं उसमें से कुछ सेल वेजिटेटिव एम्ब्रियो बनाएंगे. सो इट विल बी लाइक पॉली एम्ब्रियोनी. ओके, सो इन दिस टाइप embryos may develop from somatic nucellus cells or from integument cells along with normal zygotic embryo. मतलब नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो वहाँ पे होगा. आई मीन टू से दैट द मेल गैमेट एंड द एग फ्यूजेस टू फॉर्म द जाइगोट, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो. दिस इज नॉर्मल एम्ब्रियो, वो तो बनेगा. पर उसके अलावा इंटीग्यूमेंट्स के सेल या फिर न्यूसेलस के सेल्स उनका खुद का 1-2 एम्ब्रियो बनाएंगे. तो इसका मतलब वो ओव्यूल के अंदर एक के अलावा 2-3 एम्ब्रियो रहेंगे. One will be the normal one which is produced from sexual reproduction, and the other 2, 3, 4 they are abnormal embryos, and it gives rise to a condition called as polyembryony. उससे क्या डेवलप होगा? polyembryony डेवलप होगी. It can be seen in mango, orange and lemon plants. Okay, मैंगो में भी दिखता है, ऑरेंज में भी दिखता है, लेमन में भी दिखता है. Now if you have to observe this polyembryony, just you can do one thing. Take one mango stone. आपके घर में अभी आम का सीज़न चल रहा है तो घर में आम तो आते ही होंगे. अभी कुछ 15-20 दिन बाद या फिर 25 दिन बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाने वाला है. तो आप गुठलियाँ इकट्ठा करके रखो और गुठलियों को आप पॉलीथीन में मिट्टी भर के उसमें सो कर दो और बारिश के पानी में रख दो सीज़न में. आफ्टर फ्यू डेज, मे बी 1 week, 2 week और 3 week, यू विल सी दैट द मैंगो सीड्स आर स्प्राउटिंग. तो जब वो स्प्राउट करेंगे तब उसमें से आपको कई बार एक ही प्लांट आया हुआ दिखेगा, बट समटाइम्स यू विल अपीयर द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 प्लांट, 2-3 प्लांट फ्रॉम 1 सीड, एंड यू विल देन कंफ्यूज गेट हाउ 1 सीड गोइंग टू गिव राइज टू 3 प्लांट्स. द कंडीशन इज स्ट्रिक्टली पॉलीएम्ब्रियोनी. सेम कैन बी सीन इन लेमन, ऑरेंज, ओके, मौसम्बी, संतरी, नींबू, इसमें भी यही प्रकार की कंडीशन हमें दिखती है. ओके, बट जेनेटिकली उसमें एक ही अच्छा होता है विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बाकी 3-4 एम्ब्रियो जो बने हुए होते हैं वो वेजिटेटिव होते हैं और वो वैनिश हो जाते हैं. ओके, उसे हम कहते हैं PCD, प्रोग्राम सेल डेथ, विच इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन. सो लुक एट हियर द पॉलीएम्ब्रियोनी. इट मीन्स मेनी एम्ब्रियोज फ्रॉम 1 सीड, मेनी एम्ब्रियोज फ्रॉम 1 सीड. सो इट इज़ द phenomenon of 2 or more embryos developing from a single fertilized egg. So here in plants it is the term to describe the phenomenon of 2 seedlings emerging from the 1 plant.
Not only two, it may be three, it may be four, or it may be many. Okay, and in plants, polyembryony often give rise to enigma of single offspring, and the mechanism underlying this phenomenon is called as programmed cell death, PCD, which removes all but keep one embryo. मतलब क्या हुआ, मानो न्यूसेलस के टिश्यू ने एक एम्ब्रियो बनाया, उससे एक प्लांट बन गया, इंटीग्यूमेंट्स ने बनाया और एक प्लांट बन गया, और नॉर्मल वाला अपना जाइगोट का फर्टिलाइजेशन होके एक प्लांट बनाया. अभी एक सीड में से 3 प्लांट आए हुए हैं. अभी 3 सीडलिंग्स आपको वो गमले में या फिर वो जहाँ पे आपने पॉलीथीन में जो भी प्लांट बनाया है उसमें दिखेंगे. अभी इन 3 प्लांट्स में से एक्चुअल ओरिजिनल प्लांट कौन सा है वो ना आपको पता है ना हमें पता है. सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ पीसीडी दैट टेक्स प्लेस विच इज़ कॉल्ड एज प्रोग्राम सेल डेथ. और ये पीसीडी क्या करेगा, फिर प्लांट को ग्रो करेगा, तीनों ग्रो होते जाएंगे, और कुछ देर बाद आपको समझ में आएगा कि 2 की ग्रोथ कम हो गई है और 1 की ग्रोथ बढ़ते जा रही है. द अदर 2 जिनकी ग्रोथ कम हो जाएगी वो धीरे 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 ड्राई हो जाएंगे और वो मर जाएंगे. एंड द ओनली वन विच इज़ ग्रोइंग फास्टर एंड प्रॉपर विल गो एंड डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. नाउ इसमें और एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि वाई अदर 2 आर गोइंग टू डाई. द रीज़न बिहाइंड इट, सीड में जितना कॉटिलिडॉन है और एंडोस्पर्म है वो सिर्फ एक ही प्लांट को न्यूट्रिशन देने के लिए सफिशिएंट है. ही कैनॉट बी एबल टू विथस्टैंड न्यूट्रिशन टू मोर देन 1 प्लांट, 2, 3, 4. उसको वो न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर सकता, इसीलिए वो बाकी सबको मार देता है. Now if you want to keep all of them alive, what you can do, you can just remove the stone, mango stone, from the polythene bag, okay, or whatever you have used for it, और उसमें से फिर वो एम्ब्रियोज को अलग करो और अलग अलग बैग्स में डाल दो ताकि आपको अलग अलग प्लांट्स मिलेंगे फ्रॉम वन सीड. सो दैट इज़ वन वे हाउ यू कैन डू इट. So this is about the polyembryony, and we have completed this chapter through online lectures. देखो अभी हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं, फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स एंड सेकेंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. सो दीज 2 चैप्टर्स व्हाट वी हैव डन थ्रू ऑनलाइन लेक्चर्स. आई मीन टू से दैट नॉट ऑनलाइन, दे आर प्री अपलोडेड वीडियोज़. ओके, अभी आगे हम ऑनलाइन का भी स्टार्ट करने ही वाले हैं. जैसे मैंने आपकी ईमेल एड्रेस ऑलरेडी, यू हैव सेंडेड मी द ईमेल एड्रेस एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, तो वो भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे. बट पॉइंट हियर इज़ दैट व्हेन वी विल रिज्यूम आवर क्लास, जब हमारा ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगा, आप क्लासरूम में आना शुरू कर दोगे, उस दौरान हम ये सारे चैप्टर्स रिपीट करने वाले हैं. सो ऐसा नहीं है कि ये अभी ख़त्म हो गया तो हो गया, ये नहीं होगा. वी आर गोइंग टू रिपीट इट अगेन, ओके, with a time permission. We will have more extra classes for this, but we will try to finish it off through offline also. Okay, so next I will give you exercise, and that all exercise based on 2 things. The first one is our 12 biology state board book, okay, and the second one is our 12 biology NCERT book. तो स्टेट बोर्ड और NCERT बुक के पीछे, ये चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दी गई है वो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है. ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज, ओके, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर. जो भी आंसर नहीं मिल रहा है या फिर जहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, आस्क मी, आई विल प्रोवाइड यू द प्रॉपर सॉल्यूशंस फॉर इट. ओके, NCERT के सॉल्यूशंस भी अपलोड कर दूंगा मैं आपके लिए, बट आप पहले एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा. ओके, सो अभी ये वीडियो वॉच करने के बाद इवनिंग में मैं आपको वो एक्सरसाइज के फाइल्स दे देता हूँ और फिर आप उस हिसाब से उसको करिए. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. होप यू एन्जॉयड इट.